All right, we can start, guys. Please confirm the screen which I have shared is visible to you. I am audible, and this meeting is being recorded. So, good evening, everyone. In today's session, we are going to learn how to explore the data. So that yesterday we have seen mm, different types where we can use the library functions to explore the data. Okay. Then in the next step, in EDA, explorative data analysis, is how to process the data. So once we understand the data, once we are okay to understand the patterns, the relationship of the variables in the data, and from that, if you conclude it, then the next step comes is how to handle that data, means pre-process the data. So in earlier sessions, we have seen how we detect the outliers, how we check the data is not in a good shape, good format. So you remember like balanced data, imbalanced data. When we say imbalanced data, it means it is skewed. So skewed data, skewed towards right, skewed toward left, which we also call the positive skewness and the negative skewness. So that part we have seen. Even we understood how we can replace the null values. So these things we have understood so far. Now, while exploring the data, if let's say if we find the outliers, so by mean outliers, so you know okay, what is called outliers. The outlier is nothing but those data points which are not relying in a normal distributed format, which is out of the box. So you know it better because we have taken enough examples, and yesterday we were exploring okay, how to handle the outliers. But before that, let's say as of now we have theoretically discussed a how these outliers are, and using the, let's say, using our data points, we can say even yesterday when we started with the notebook, we find there like in the range there were 450 and 400 in the data which we said these are outliers. But there are some techniques which we call the whisker plot. We know like there are quartile ranges. So we will learn today how we define whatever the data point is the outlier. Okay. And for that, guys, this is one example which I'm showing in front of you. Using the box plot, how this detection of outliers we find. So on that, we will be taking some like this practical example in terms of calculations. So I hope you will be with me while we will be dealing with this calculation. And these steps are the steps which help us to calculate the outliers, to detect the outliers, to understand if there is outlier in the data point or not. Okay. तो ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स से हमें पता चलता है कि बॉक्स प्लॉट के थ्रू आउटलायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. And maybe guys in interview, if interviewer ask you what is outliers, or what are outliers and what is the method which let me. All right. So I hope I was audible now. I'm not Yes, sure yes, when we were discussing. So this screen was visible earlier, right? yes, Okay. So this is the part which we were discussing, and as I said, okay, maybe someone can ask you, okay, what are the methods to find or to detect the outliers? So we are exploring that method using the box plot, and here are some examples. So here, looking to this data, uh, if I ask you, okay, find the outliers over here, maybe when I'm asking to find the outlier, so it is not that much like we can say measurable, and we can say yes, this data is having outliers. Okay, this data is having outliers. This is not even measurable. We cannot say कि yes, outliers है या नहीं है.
or if there are outliers, let's find it using the technique. And these are the steps. These are the steps. So guys, I will ask you to do this calculation, and also we will do this calculation together. Okay. So when we say okay, we have to find the outliers in the data using the box plot method. Very first step, we do the sorting of the data. So can you please tell me, if we are sorting this data, we are sorting this data. Yeah. So what will the first value, guys? 7. 7. Okay. Yes, 7, then 10, then 14. 14, 15. 15. Okay. 18. 18, 19. 19. Okay. 23. 23 and 35. 30. 38. 30, 38. Okay. And 40. 40. Okay. All right. So once the sorting is done, the next step we do, and that is nothing but finding the median. Okay. So here, if we are asked to find the median, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. What will the median, guys, here? The median? 7, 8, 9, 10. 10 sixth. Uh, 18, 19. 18 plus 19. 20 Divided plus by 2. 2. Divide by 2. okay. Okay. So 18, So 18, 36, 37 by 2 is nothing but 18, 18.5, right? So that will be our median. Huh? So very first thing, what we do, we calculate the median. Okay. Let's say our median is here. Hmm? From this data, we calculated the median. This entire data, we calculated the median. And that is 18.5. Okay. One question, Gaurav. Yes. Gaurav, when you find a median, then it Ah. automatically sort the data. So then do we need to explicitly sort it in the step 1? Yes, we need, because automatically sort the data for finding the median actually. Yeah. Okay, finding the median. But in this box plot now, the Mhm. thing is, we don't have to do anything over here very first, because this calculation is internally done. How it Okay. is calculated, that we are finding. That is one thing. And yeah, you can yes, that is even yeah, sorting is the one thing to move ahead, because when we say now, when we arrange this data in quartiles, so this is your quartile 1, this is your quartile 3, okay, okay, and this we can say this is your quartile 2, and this quartile 2 is nothing but your median. So अगर इसको इस वे से समझा जाए कि what we are doing, we are just manipulating, this data in such a way कि we will be finding some लक्ष्मण रेखा. तो लक्ष्मण रेखा इन द सेंस विस्कर बोलते हैं हम उसको, विस्कर. तो विस्कर को हम फाइंड कर सके, और एक बार विस्कर फाइंड हो गया, then we will be easily able to understand the outliers. So that is the purpose. तो Okay. हम क्या करते हैं मैनिपुलेशन में, डेटा को फर्स्ट सॉर्ट आउट. तो सॉर्ट आउट जैसे ही होता है, मीडियन वी आर एबल टू फाइंड. सो वी फाइंड द मीडियन ओवर हियर. ओके, वंस वी फाइंड द मीडियन, तो क्या हो जाएगा, एक ये पार्ट बन गया आपका, और ये, ओके, वन सेकेंड, ये एक पार्ट बन गया आपका, एंड देन ये एक पार्ट बन गया. ठीक है. देर आर लाइक काइंड ऑफ थिंग्स गाइस. आप आपके कैलकुलेशन में ये भी ले सकते हो, बट इट्स ओके. आपके कैलकुलेशन में ये भी ले सकते हो. एज आई सेड कि दिस इज मैनिपुलेशन, टोटली मैनिपुलेशन. ठीक है. तो दिस इज टोटली डिपेंड. ओके, तो लेट्स से हमने ये क्वेश्चन जो हम बोलते हैं ना क्वार्टाइल, वी हैव कंसिडर दिस एज अ क्वार्टाइल, वी हैव कंसिडर दिस एज अ क्वार्टाइल विच इज क्वार्टाइल 3. ठीक है. तो ये वाले सेक्शन में हमें मिल गया ये डेटा, और इस वाले सेक्शन में मिल गया ये वाला डेटा. ठीक है. नाउ एज आई सेड कि इफ यू अप्लाइंग दिस ऑन लार्ज डेटा, बिग डेटा, सो वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप कि आप पहले इजी वे से छोटे डेटा पे समझ लीजिए. उसके बाद ये जो मेथोडोलॉजीज है, ये ऑटोमेटिक वर्क करेगी बिग डेटा पे, ज्यादा वाले डेटा पे. ठीक है. बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस थिंग्स वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये तो लाइब्रेरीज यूज करके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं. बट
we have to understand कि what exactly is happening, because this box plot is very important in the sense कि when someone is like some questions are asked from the analyst point of view, then interviewer or like these guys ask you, okay, what are outliers, and how exactly we find the outliers using box plot method. What is box plot method? What is quartile 1, quartile 3? What is IQR? What is IQR? Interquartile range. ठीक है, तो interquartile range is एकदम simplified, जो simply वे से calculate होती है, and using it calculated using this के max, ये max value इसको बोलते हैं हम. Q3 is your max value because we have sorted our data, and this is your minimum value. Okay, and then when you calculate the range, तो range कैसे calculate करते हैं हम? Max minus minimum, and that is Q3 minus Q1, which is your IQR. ओके, IQR. तो आपका IQR मिल गया. ठीक है, IQR मिल गया. तो यहाँ पे IQR क्या होगा गाइस? तो यहाँ पे भी एक चीज आप देखिए. ठीक है, इसको मैंने 10 पॉइंट ले लिए. अगर मैं 11 लेता तो काफी कैलकुलेशन इजी हो जाता, बिकॉज 11 में क्या हो जाता, यहाँ पे सेंटर में आ जाता आपका एक पॉइंट, इधर 5 रहते, इधर 5 रहते, एंड इट बिकेम वेरी इजी कैलकुलेशन. अभी क्या हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गया, इन द सेंस यहाँ पे भी आपको Q1 कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड दैट Q1 इज ऑल्सो अ मीडियन. अगर इसकी मीडियन कैलकुलेट करोगे तो व्हाट विल बी द मीडियन गाइस? 10 plus 14, 24 divided by 2. The 11. Q1 will be 12, right? 12. 12, right? And here 38 plus 30, that is nothing but 68. 68 divided by 2 is nothing but 32, 34, right? Correct? Yes, guys. 68 divided by 2. 68 divided by 2. 34, right? Yes. Okay. So Q3 is 34 and Q1 is 12. तो IQR क्या हो गया फिर अपना? IQR, what is IQR? IQR is 34 minus 12. IQR is 34 minus 12, which is 34 minus 12, guys, कितना होता है? 22. 22. ओके, 22 इज योर IQR. ठीक है, जैसे ही IQR फाइंड आउट हो जाता है, जैसे ही IQR फाइंड आउट हो जाता है, देन यू फाइंड द लोअर विस्कर. और लोअर विस्कर फाइंड करने का ये फॉर्मूला है 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR. सो व्हाट इज IQR? 22. तो 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना हुआ? 33. 33. ठीक है, 33. ओके, एंड देन ये जो है, ये माइनस, यहाँ ये माइनस भी करना है आपको. ठीक है, ठीक है, इससे हमको माइनस करना है, बिकॉज इट इज 1 माइनस और दैट लोअर माइनस, सो Q1 माइनस यू कैन डू इट. ठीक है, वी विल डू दिस, इवन प्रैक्टिकली वी विल बी सीइंग दिस. फाइंड द अपर विस्कर, बिकॉज एट द एंड ये जो विस्कर रहता है ना, दिस इज हियर समवेयर एंड दिस इज हियर समवेयर. तो ये जो, इसको ही लक्ष्मण रेखा हम बोलते हैं. जैसे हमने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था. ठीक है, ये लक्ष्मण रेखा होने के बाद, ये लक्ष्मण रेखा होने के बाद इससे बाहर के जो भी पॉइंट्स है, दोज विल बी कैलकुलेटेड एज आउटलायर्स, अगर है तो. अदरवाइज योर डेटा रिमेन्स इन दिस बाउंड्रीज ना, इनको विस्कर बोलते हैं. दिस इज योर वी कैन से अपर विस्कर. ये आपकी अपर विस्कर है, और ये हो गई आपकी लोअर विस्कर. ये हो गई आपकी लोअर विस्कर. ठीक है, ये लोअर विस्कर है, अपर विस्कर है. तो फाइंड द लोअर विस्कर, स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द 1.5 QR, below Q1, okay, below Q1. So what was the IQR? IQR was 33. ठीक है, एंड ये किसके लिए हुआ? IQR जो भी था. ठीक है, तो 33 मतलब क्या, यहां से दिस पॉइंट से अबो 33 और इस पॉइंट से बिलो 33. ठीक है, तो ये जो विस्कर का जो, ये जो विड्थ है, ये हो गया आपका 33. ठीक है, ये हो गया आपका 33. तो आपको क्या करना है, ये इस पॉइंट से लेके 33 से ऊपर जो भी वैल्यू आ गई. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में यू विल बी फाइंडिंग द नेगेटिव जो लोवेस्ट वाला, जैसे हमने कल के एग्जांपल पे देखा था 0.4, बट 0.4 वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लोवेस्ट IQR. ठीक है, ये विस्कर के अंदर, बट जो 400 और जो 450 थे, वो पॉइंट्स आउट ऑफ द विस्कर बॉक्स जा रहे थे. ठीक है, बिकॉज Q3 जो भी अपनी वैल्यू है, Q3 की वैल्यू थी अपनी 34. ओके,
ठीक है। तो 34 प्लस 33 जो अपना IQR है, तो 34 प्लस 33 जो भी आएगा उसके ऊपर अगर कुछ वैल्यू जाती है दैट विल बी योर आउटलायर। एंड हियर Q1 जो थी 12, ठीक है। तो 12 में से just go like subtract 33 from here, and whatever the जो 33 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 12 में से जो भी आपका आएगा, कितना आएगा 12 में से अगर 33, मतलब 33 में से अगर 12 जाता है तो व्हाट इज दैट, 33 में से 12 जाता है तो 1 एंड 21। 21, तो -21 तक, ठीक है। तो -20 मतलब अगर यहाँ पे आपके आ गया 24, -24, तो दिस विल बी योर आउटलायर। और यहाँ पे अगर आ गया आपका कितना था 34 प्लस 33, तो 34 प्लस 33 होता है आपका 77 ना, ठीक है। 77 होता है ना। तो ये जो बाउंड्री है 77 तक, यहाँ से ऊपर अगर गया लेट्स से 78 और 80 गया, तो 80 विल बी योर आउटलायर एंड दिस साइड -24 विल बी योर आउटलायर। तो इसको इसको बॉक्स प्लॉट बोलते हैं, विस्कर प्लॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोरख -24 कैसे आएगा? हाँ, -24 ही आएगा ना, बिकॉज दिस इज लोवेस्ट पार्ट ना। लोवेस्ट पार्ट मतलब अगर ये जो रेंज है अपनी डेटा की, हम्म। ठीक है। मतलब कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मैंने यहाँ पे -21 बोला है, हाँ यहाँ पे मैंने -21 बोला है, ये जो बाउंड्री है उसके ओके। बाहर अगर जाता है तो -24 ही आएगा ना, बराबर है ना। मतलब अगर हम एक लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये अपना जीरो है बराबर, ये अपना हम्म। जीरो है, हाँ। तो इधर क्या जाएगा -1 बराबर, इधर आएगा -2 बराबर, इधर जाएगा -3 बराबर। मतलब जैसे हम जीरो से इस साइड में मूव हो रहे हैं, तो लेट से अगर यहाँ पे आ गया अपना -21, मतलब ये बाउंड्री वाला पार्ट, ये कैसे आया पता है ना -21, यही कैलकुलेट किया, क्या किया हमने यहाँ पे जो 6 12 6। आया था ना अपना, ये क्वार्टाइल 1 का जो 12 आया था ना, 12 में से आपने हमने IQR माइनस किया, ठीक है। तो अगर आप 3 मतलब 12 में से 33 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा -21 बराबर। तो ये बाउंड्री यहाँ पे हो गई। अगर इस बाउंड्री से इधर और लेसर जाता है, मतलब लेट से जैसे मैंने बोला ये यहाँ से जीरो से इधर गए -21, तो यहाँ पे आएगा आपका -22 बराबर है ना। इस साइड में आएगा आपका -23, मतलब इस वे से जब जाओगे तो आपको माइनस माइनस माइनस, ठीक है। मतलब चलो एक सेकेंड ना, आर यू क्लियर ऑन दिस ना? हाँ। यस। Okay, okay. But let me explain this in a proper way because maybe a similar kind of confusion बाकी लोगों को भी हो सकता है। तो ओके, ये जैसे एक सेकेंड, आई एम जस्ट ओपनिंग। ओके, ठीक है। तो अच्छा, इट इज स्टिल लोडिंग, हाँ। थोड़ा सा हैंग हो गया शायद एक्सेल आज का। ऑलराइट, ठीक है। ये लाइन प्लॉट में क्या होता है, और अगर आप देखेंगे तो कैसे होता है ना, माइनस अगर है तो -5 इज लेस देन -2, करेक्ट। -5 इज लेस देन -2, वाई, बिकॉज वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो -5 ये हमेशा -2 से कम ही रहेगा, ओके। ये मतलब रूल है गाइस, ठीक है। अगर आप प्लस कर दोगे, आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 विल बी लेसर देन 5, ठीक है ना। ये अपना जीरो रहता है अपने स्केल में, स्केल अगर आप ये करोगे तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, हाँ। एंड दिस साइड कैसे होता है, -1, -2, ठीक है। तो -1 -2 मतलब क्या, -2 में अगर आप एक ऐड करोगे, -2 में अगर आप एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। -1 में अगर एक ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0, 0 में अगर एक ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1 ना। तो दैट्स व्हाई वी से कि -5 इज लेस देन -2 बट 2 इज लेस देन 5, ये अपना नंबर प्लॉट के। तो एंड सिमिलर वे व्हाट वी आर डूइंग देन, व्हाट वी आर डूइंग, एक सेकेंड, क्लियर द ड्राइंग्स, ठीक है, ओके। तो व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे जो मैनिपुलेशन है ना गाइज, वो क्या किया है, विस्कर बॉक्स क्या बोलता है आपको, सॉरी ये बॉक्स प्लॉट क्या बोलता है कि आप एक सर्टेन एक लिमिट डिफाइन करो डेटा का, ठीक है, जो भी डेटा है, और इस लक्ष्मण रेखा से बाहर जो भी डेटा पॉइंट जाएंगे दोज विल बी योर आउटलायर्स। तो देयर शुड बी सम डिफाइंड पार्ट, ये सर्कल रहेगा, मतलब सिमिलर इस वे से ये ऐसा, ठीक है, और इसमें से जाने वाला ये सर्कल ऐसा।
मतलब ये मैंने थोड़ा ड्राइंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट ये जैसे यहाँ से डिफाइन होगा तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड वो अपने को ये मिलेगा, तो टॉप और बॉटम में कौन सा वैल्यू मिलेगा फिर? कौन कैसे कैसे? यस, हाँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक वैल्यू मिलेगा, बराबर। बराबर बराबर, तो टॉप और बॉटम में आप बोल रहे थे ये सर्कल ड्रॉ करेगा, और सर्कल के बाहर हाँ, के जितने भी करेक्ट कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स हमारे आउटलायर हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता टॉप और बॉटम, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रेंज। ये एक्चुअली ये दिखने में आपको थोड़ा सा अंडाकृति या मतलब ओवल शेप दिख रहा है। द थिंग इज, चलो अभी इसको ऐसे समझो, हम्म, इसको ऐसे समझो। एक्चुअली ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ, ठीक है। ये ऐसा है, मतलब एट द एंड ये ऐसा है, ठीक है। एंड दिस आर आवर डेटा पॉइंट्स, दिस आर यस। आवर डेटा पॉइंट। जैसे मैंने कल के यहाँ पे आपको बता रहा था ना, डेटा पॉइंट्स कैसे विजुअलाइज करना। डेटा पॉइंट्स मतलब क्या, रो की वैल्यूज, ठीक है, रो की वैल्यूज। तो हमने क्या किया, ये सब डेटा को है ना, पहले तो इसका मीडियन निकाल लिया हमने, ठीक है। मीडियन निकाल लिया डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मीडियन निकला, उसके बाद हमने दो दो पार्ट में डेटा को डिवाइड कर लिया था एक्चुअली। हमने क्या किया, डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। दो पार्ट में जैसे डिवाइड हुआ, मतलब वही क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल टू, ठीक है। तो क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल टू, ये देखो यहाँ पे भी दो पार्ट में मैंने ठीक से डिफाइन, मतलब ऐसा सेंटर में से जाएगी ना, दो इक्वल पार्ट्स होंगे गाइस एक्चुअली, बिकॉज वी हैव फाइंड द मीडियन। जैसे ही दो इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल वन और ये हो गया आपका क्वार्टाइल टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल टू। तो इसकी जो रेंज रहती है ना, उस रेंज के ये एंटायर जो भी है, ठीक है, इस रेंज में अभी इधर के जो भी आपके प्लस मिले, इधर के जो भी आपके माइनस गए, ठीक है। तो माइनस गए मतलब क्या, यहाँ पे टॉप और बॉटम, अपर और लोअर ऐसा नहीं रहेगा। आपका जो डेटा पॉइंट्स रहेगा, जैसे मैंने एक ये न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के आपको बताया ना, कि जीरो एंड देन दीज आर द वैल्यूज। सो दोज आर, दीज वैल्यूज आर नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंसेस। ये एक्चुअली होते हैं डिस्टेंसेस। वन सेकेंड, इसका ओपेसिटी थोड़ा कम करता हूँ। हाँ, ये होते हैं एक्चुअली डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंसेस भी देखो, देर आर नंबर ऑफ कंसिडरेशंस। तो डिस्टेंस मतलब हमको क्या पता है, फिजिकल डिस्टेंस पता है। मतलब मैं बोलूंगा पुणे से मुंबई का डिस्टेंस, ये तो हो गया फिजिकल फिजिकल डिस्टेंस। बट एक्चुअली ये डेटा के अपने चिप में, ये जो भी मेमोरी, उसमें क्या फिजिकल डिस्टेंस थोड़ी होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, मैथमेटिकल डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल डिस्टेंस भी वी कंसिडर एक्चुअली। और वो जो भी हम ये जो सब कर रहे हैं, दैट इज अ मैथमेटिकल डिस्टेंस। और मैथमेटिकल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे मैंने बोला, देखो ये जीरो आपका लाइन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका माइनस वन है और यहाँ पे आपका वन है, सॉरी ये वन है, तो ये वन मतलब बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव वन होता है बराबर इस साइड। और यहाँ पे ये वन, फिर ये माइनस टू वाला, माइनस टू, ये होते हैं आपके निगेटिव वाले, ठीक है। तो अगर ये माइनस टू का और एक का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बेस्ड ऑन द स्केलिंग सिस्टम। कैसे, कितना रहेगा वो डिस्टेंस, वन, टू एंड थ्री। सो डिस्टेंस विल बी थ्री, वन टू माइनस टू से लेके बराबर। और ये माइनस वन का ये रहेगा दो, ठीक है। और अगर जीरो से लेना है तो ये भी वन डिस्टेंस है और ये भी वन डिस्टेंस है, आप समझ रहे हो। जीरो से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये भी वन डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस इज मेजरेबल इन अ सेम क्वांटिटी, ठीक है। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि माइनस वन का डिस्टेंस माइनस वन है और इसका डिस्टेंस है प्लस वन, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूंगा इसका डिस्टेंस माइनस वन है, तो गलत गलत हो जाएगा ना। क्योंकि हम ऐसा करते हैं क्या, मुंबई से पुणे का डिस्टेंस -220 किलोमीटर है, और पुणे से मुंबई का डिस्टेंस है 220, जो भी 150 है, आई गेस 150 किलोमीटर ना। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन अ मेजरेबल डिस्टेंस विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एंड ये जो अभी ये अपर लोअर जो मैंने बोला, ठीक है। तो जनरली दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये डेटा का आपका अंडरस्टैंडिंग है कि ये विस्कर है, ये विस्कर है, ठीक है। एट द एंड जो भी डेटा प्लॉट होंगे, उनके जो भी वैल्यूज रहेंगी, उन वैल्यूज में से डेटा पॉइंट्स का जो भी आपका कैलकुलेशन होगा, इट विल बी लाइक। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम देख रहे थे अभी, जैसे कि अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे डेटा पॉइंट्स का इस एग्जांपल में, ठीक है। तो इसमें मैं बोल रहा था, अगर -24 आ जाएगा इसमें, अगर इफ वी टेक द -24, इट विल बी कंसिडर एज आउटलायर। एंड हियर इफ वी टेक लेट्स से 70, जो भी हमने 77 था शायद, उसके ऊपर जाएगा, तो दैट विल बी योर आउटलायर इन दिस डेटा, ठीक है। एंड दिस कैलकुलेशन टेल्स अस दिस एंटायर। एंड ये जो कैलकुलेशन है, ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज ये तो आपने बाय डिफॉल्ट, मतलब जो भी अवेलेबल फंक्शंस है उस पे तो आपको डायरेक्टली यू फाइंड द आउटलायर्स एक्चुअली, ठीक है। सो आई होप इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए होंगे ना, जो मैंने अभी कैलकुलेशन और ये सब चीजें बताई। इट इज एंड लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, ठीक है, लेट्स डू इट। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए कि हाउ दिस थिंग्स लाइक फाइंडिंग द
आउटलायर्स वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो ये सीरीज थी, सीरीज में डायरेक्ट देर आर दिस इज कॉल्ड रिमूविंग द आउटलायर्स। तो yesterday we were looking into this and we removed the outliers directly, but how did we find कि ये outliers है? हमने कैसे कैलकुलेट किए कि ये outliers है? तो कैसे कैलकुलेट किए, यही दिस वाला पार्ट आई वाज एक्सप्लेनिंग। अगर आप इसी इसी इन्हीं को अगर कैलकुलेशन करोगे जो हमने किया और देखोगे, तो आपको दिख जाएगा कि ये आउटलायर्स थे 400 एंड 450 जो अपना कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। आई होप कि आप इसका कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। और अगर करना है तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्या हो जाएगा वो रिपीट, मतलब इफ यू वांट वी विल कैलकुलेट दिस हियर ओनली, बट आई थिंक दैट इज अंडरस्टैंडेबल ना, जो भी अभी हमने डिस्कस किया वो अंडरस्टैंड हो गया ना आपको कि आउटलायर्स कैसे हुए, क्योंकि विस्कर का जो लिमिट था उससे ये बाहर गए एंड दैट्स व्हाई वी फाउंड दिस इज आउटलायर। सो ऐसा नहीं है कि ये 400 था, 450 था, हमने मैन्युअली देख लिया और इसको आउटलायर बोल दिया। उसको आउटलायर बोलने के लिए कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजी थी, मेथड थी, उस वो स्ट्रैटेजी और वो मेथड मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 450 और 400 दिख रहा था एंड देन वी सेड के दिस आर आउटलायर्स। लेट से अगर ये ऐसे रहते तो लेट से 130 रहते, ये फिगर 130 रहती और ये अगर 99 रहती, तो कैन बी से दिस एज आउटलायर्स? इफ यस, तो व्हाट इज द मेथड टू फाइंड दिस आर आउटलायर्स? समझ रहे हो आप? तो ये आउटलायर्स की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और मेथड है विच टेल्स यू कि आउटलायर्स है या नहीं। चलो इसमें अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर ना? इफ देर इज एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क ना, फील फ्री टू आस्क। Small question इसमें. यस यस मोइन। In the previous slide ना, where you have written more on outliers. दिस वन, हाँ। हाँ, इसमें आपने क्या बताया कि ये जब हम लोग Q1 एंड Q3 निकालते हैं, ओके, उसमें हम लोग कि डेटा मैनिपुलेशन में जो Q1 में हम लोग इंस्टेड ऑफ 4 डेटा पकड़ेंगे सिर्फ, लास्ट मतलब जो मिनिमम 4 वैल्यूज है वो. ओके। तो उसमें अगर डेटा मैनिपुलेशन, ओके, तो उसमें केसेस आप बता रहे हो कि हम लोग आइदर 5 भी कंसिडर कर सकते हैं और 4. दैट इज अगर करेक्ट। हम लोग 4 या 5 कंसिडर करेंगे तो वैल्यू तो डिफरेंट आएगा ना, फिर यस, उसमें वैल्यू कैसे डिफरेंट क्या आएगा होगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन में देखो लाइक दिस थिंग इज ऐसा सर्टन डिफाइन नहीं, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि हर एक चीज का है ना, जैसे आप आगे भी जाओगे, हर एक चीज का एक वी कैन से कि सम मतलब ऐसे स्टैंडर्ड मेथड कि यही करना है ऐसा नहीं है। इसको स्ट्रेटेजीज से हम कर सकते हैं कि ऐसा है, पूरा मशीन लर्निंग में पूरा आप ऐसे ही समझोगे। मतलब जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आई विल टेल यू द एल्गोरिदम्स, तो एल्गोरिदम्स में भी यही चीज होगी। तो अभी कैसा है ना, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि देखो ये पूरा डेटा था, उसमें हमने क्या किया, इसका मीडियन निकाला। तो जैसे जनरली क्या करते, आपके पास लेट से अगर आपको सॉर्ट आउट करना है किसी चीज को, ठीक है, सॉर्ट आउट करना है मतलब रैंडमली कुछ आपके पास लेट से ऐसा समझो, मतलब आई एम गिविंग सम एग्जांपल। आपके पास गेहूं है, गेहूं दिए हैं, ठीक है, आपके पास गेहूं दिए हैं। तो आप क्या करोगे जनरली, अगर आपको इसको दो हिस्से में बंटवारा करना है, तो देयर इज वेइंग सिस्टम, बराबर, एक वेटेज सिस्टम है। तो अगर ये कितने ये गेहूं है, लेट से 1 kg है, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना गाइस, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये 1 kg गेहूं है, मतलब एंड यू कैन रिलेट दिस विथ आवर डेटा पॉइंट्स। ये 1 kg गेहूं है और मैं क्या बोलूंगा, दो बंदों में बांटना है 1 kg, तो आप क्या करोगे 500 ग्राम और 500 ग्राम ऐसे करके बांटोगे, बराबर, बराबर, दो बंदों में इक्वल बांटना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 500 ग्राम 500 ग्राम मतलब हाफ के जी, बराबर, हाफ के जी आपने दिया एक बंदे को और दूसरे बंदे को दे दिया हाफ के जी, ठीक है। अभी मुझे इसमें ये बताओ कि क्या गारंटी है कि जो टोटल ये 1 kg के जो गेहूं थे, लेट से कि वो गेहूं थे अपने 1 kg में, ऐसा समझो कि लेट से 50,000 गेहूं है 1 kg में, कितने, 50,000, फिर 50,000, हाँ, 50,000 गेहूं है अगर काउंट करने जाओगे तो 1 kg में। तो आप ऐसे बोलोगे क्या, मतलब ये इसकी क्या गारंटी है कि 50,000 का मतलब इसके हाफ के जी में 25,000 ही गेहूं गए और इसके भी हाफ के जी में 25,000 ही गेहूं गए? गारंटी है क्या इसकी? ऐसे ही होगा क्या? यस, ऐसे होगा? नहीं नहीं। नहीं होगा ना, इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है ना, बट जनरली वी क्या, हम जनरली क्या बोल सकते हैं, हाँ, कि जनरली हो सकता है 25,000 तो नहीं होगा, लेकिन नियर अबाउट जो डिफरेंशिएशन होगा थोड़ा सा 19-20 इधर होगा, बराबर, बराबर। हम्म हो सकता है कि भाई 25,000 है ना, तो मे बी
24,900 गऊ इधर हो गया, और मतलब इतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बट इधर उधर होगा 19-20। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गाइस। और सिमिलरली जो हम अभी कर रहे थे ना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। तो कहीं पे तो हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए था, स्टैंडर्ड इन द सेंस कुछ तो वे चाहिए था कि वी कैन से कि भाई दिस इज आउटलायर। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देन दिस, मतलब ये जो पार्ट है ना, जैसे मैंने बोला 1.5, कहीं कहीं पे क्या होता है, मतलब कहीं कहीं पे इन द सेंस दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर बिजनेस यूज केस। तो यहाँ पे 1.5 किया है ना, सम गाइस बेस्ड ऑन लाइक लेट्स से डेटा क्वांटिटी, डेटा कितना है तो कितने में लेना है और कितना छोड़ना है, और आउटलायर का बिहेवियर कितना है, उस पे डिपेंड करता है कि 1.5 ले या फिर ओनली 1 ले, या फिर लेट्स से 0.5 ही ले ना। बिकॉज सी डेटा इज डेटा। ओके, अभी कैसा हो गया डेटा में ना, लेट्स से ये विस्कर है अपना, ठीक है, ये विस्कर है। आई एम जस्ट अगेन एक्सप्लेनिंग द डेटा इन इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से अगर ये 99 है, ठीक है, ये है 99, और अपना यहाँ पे इफ दिस इज लेट्स से -25, ठीक है। बट क्या हो गया, हमको ये बॉर्डर जो पॉइंट्स है, बाउंड्री के पॉइंट्स, अपने कैलकुलेशन के और इस सब कैलकुलेशन के हिसाब से बोल रहा है कि भाई इसके ऊपर का जो भी पॉइंट आए, इसके नीचे का और इसके ऊपर का जो भी पॉइंट आएगा उसको आउटलायर बोल दे, उसको क्या बोल दे, आउटलायर। ठीक है, चलो बोल दिया, हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे 99 था, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 99 हो गया आउटलायर, हमारे कैलकुलेशन के वो हिसाब से हो गया, ये हो गया 25 आउटलायर, -25 आउटलायर हो गया। ठीक है, बट क्या हो गया, डेटा जो था ना अपना, बस इसके बाहर अभी नहीं था, बाकी डेटा है ही नहीं, मतलब 25 भी था और 99। तो उस केस में हम क्या करेंगे यार, इट्स ओके ना, बाउंड्री पॉइंट्स में है तो इसको ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे रहता अपना 400, तो 400 को इंक्लूड करना इज नॉट द गुड थिंग, बट बाउंड्री पे है, ओके, एंड वी हैव ओनली लिमिटेड डेटा ना, तो लेट्स कंसीडर दिस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बट दिस इज वन मेथड ऑफ मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे कैसा है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि इस डेटा में आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, कॉर्ड जो मैंने क्वार्टाइल का बोला था ना, कि इधर के 4 आप इसको कंसिडर कर सकते हो, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये अभी सॉर्टिंग नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड कि सॉर्टिंग नहीं है अभी। ठीक है, और यू कैन डू इन दिस वे भी, ये भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे, बिकॉज एट द एंड क्या होता है ना, एट द एंड वी आर देयर टू डील विद द डेटा। अल्टीमेट हमारा जो पर्पस है, डील विद डेटा, एंड मेन पर्पस इज टू डील विद द आउटलायर्स। ठीक है, सो दिस इज ये ना कम ज्यादा होता है, ये फ्लक्चुएशन, बट दैट कम ज्यादा इज नॉट, इतना भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जो अभी किया ना मैनिपुलेशन, कि चलो भाई 4 का ले लिया या फिर 5 का ले, ये इतना भी ज्यादा चेंज नहीं है, इतना बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, एंड जैसे मैंने बोला 1.5 हो, आप जैसे बेस्ड ऑन योर यूज केस और जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि 1.5 बोला है तो 1.5 लेना है, नो, बिकॉज एट द एंड दिस दिस स्ट्रेटेजी, दिस मेथड इज, इसका पर्पस इतना ही है कि आउटलायर डिटेक्ट करो, एंड आउटलायर डिटेक्ट करो इन द सेंस, जैसे मैंने बोला कि ऐसा कोई रिटर्न स्टैंडर्ड नहीं है, बट मतलब ये 400 है, तो आप मतलब अगर इसको फॉलो नहीं करोगे, कर करके कितना भी करोगे, बट 400 इज वेरी आउटसाइड। सो एनीवे, ये इसको तो मतलब ये वाले मेथोडोलॉजी में आप थोड़ा सा इधर उधर छेड़छाड़ी भी की, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि गलती से 400 को भी पकड़ लिया आपके डेटा रेंज में, ऐसा तो होगा ही नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट एडजस्टिंग, एडजस्टिंग। और ये एडजस्टिंग ऐसा है गाइस, जैसे जैसे मैंने बोला, आप आगे बढ़ोगे ना, तो मशीन लर्निंग में क्या है पता है, मशीन लर्निंग एआई में उसमें आता है फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग का अगर मतलब आप देखोगे, तो फाइन ट्यूनिंग इज द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या, कि एक फ्रीक्वेंसी को मैच करो, तो उसमें हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, फाइन ट्यूनिंग के लिए होते हैं हाइपर पैरामीटर्स, जैसे कि मैक्स डेप्थ होता है, मतलब अगर आप डिसीजन ट्री में जाओगे तो मैक्स डेप्थ होता है, मतलब सेकंड नोड तक जाए या थर्ड नोड तक, लीप तक कितना जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा ग्रेडियंट डिसेंट बोलूंगा, तो लर्निंग रेट्स होते हैं। तो लर्निंग रेट्स हम डिसाइड करते हैं कि लर्निंग रेट 1 रखना है या 0.1 रखना है या फिर 2 रखना है। दिस इज डिसाइड बाय अस, बिकॉज वी आर डूइंग फाइन ट्यूनिंग टू ट्रेन दैट मॉडल। तो दिस मैनिपुलेशन, दिस एडजस्टमेंट इज ऑलवेज नीडेड। ठीक है, तो वही तो मतलब एज आई सेड के, ये जो भी हम सीख रहे हैं, दैट एंटायर टेक्निक, जो भी मेथड, जो भी हम कुछ सीख रहे हैं ना, वो सब इज वेरी, जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूंगा जुगाड़, जैसे हम बोलते हैं ना यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं, जुगाड़ मतलब ये तो वर्ड हो गया, आप जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस, बट व्हाट इज द मीनिंग कि भाई टू गेट दैट सॉल्व in a different way or different strategical way, we do some arrangements, some adjustment, or let's say some strategies to make it done, जो भी है उसको
फिनिश करना है, अकॉम्प्लिश करना है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज आई सेड कि ये जो भी अभी हमने डिस्कस किया, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अरेंजमेंट, एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन वी कैन से, एंड दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन विल बी हैबिट फॉर यू व्हेन यू विल बी मूविंग अहेड। जैसे कि देयर आर सो मेनी अल्गोरिदम्स, एसवीएम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, उसके बाद के एन एन है, के नियरेस्ट नेबर। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं अभी एसवीएम में, क्या करते हैं, डेटा को एक ऐसा एक लाइन मार देते हैं और उसके बाद ये बाउंड्री, तो डिसीजन बाउंड्री उसको बोलते हैं, और उसमें देखते हैं कि भाई कौन से पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन ये वाला करो। मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है गाइस मशीन लर्निंग के बारे में। हाँ। बट जैसे आप आगे जाओगे ना, ये सब चीजें आपको पता चलेगी। ओके, यस आदित्य। या गौरव, तो जो 1.5 की जो वैल्यू है, जो हमने कहा कि उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? यस तो यू कैन, या या सो उसको ऐसे कुछ रेंज है क्या कि वो 0.5 टू 1.5 के बीच में हम चेंज कर सकते हैं, या फिर 1.5 के ऊपर भी उसको चेंज कर सकते हैं? ऐसा कुछ रेंज है क्या उसकी? रेंज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टैंडर्ड एक एक जो बोलते हैं ना स्टैंडर्ड वे, मतलब बिकॉज व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग जेड स्कोर, तो हम्म 1.5 बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड। बट जैसे कि अगर इसको ज्यादा ऊपर चले गए, चलो एक मैं बोलता हूँ 5 या हम्म 6 तक गए, ठीक है, बट 6 तक जाना क्यों है, ये डिसाइड करता है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ओके वेदर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सेइंग कि नो, वी हैव टू इंक्लूड मैक्सिमम आउटलायर्स इनटू आवर डेटा, ओके, इन दैट केस ना आपको आपको ये बढ़ाना पड़े, ठीक है, ओके। और आपको ये बढ़ाना लोअर पड़े। व्हिस्कर और जो अपर व्हिस्कर है, दोनों के कैलकुलेशन का जो एलिमेंट है 1.5, हाँ, वो जो दोनों जगह पे अपने को सेम रखना पड़ेगा, राइट? यस यस, उसको कोई या चेंज नहीं कर दोनों सकते? जगह पे सेम रहेगा, इधर इतना है तो उधर भी उतना रहेगा। हाँ, ओके दैट इज करेक्ट, दैट इज ओके। करेक्ट। ऐसे नहीं होगा कि इसमें अलग है, मतलब ठीक है, अभी वो भी ठीक है, स्ट्रैटेजीज है, जैसे मैंने बोला है, दिस दिस एंटायर थिंग इज स्ट्रैटेजी गाइस, ये सब स्ट्रैटेजी है। और मैंने बोला ना, अल्टीमेटली जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको सब स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। अगर आपको याद है, मैंने वेरी फर्स्ट सेशन में जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था, ठीक है, तो मतलब इफ यू रिमेम्बर हमारा वेबिनार जो था, तो वेरी फर्स्ट सेशन, तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चंस। तो इन दैट क्वेश्चंस माय पर्पस ये नहीं था कि आप क्या आंसर दे रहे हो, आपका कितना, मेरा पर्पस मतलब जनरली पर्पस ये था कि यू आर गिविंग आंसर्स, ठीक है, नो मैटर आपने किस वे से थिंक किया, क्या यू आर गिविंग आंसर। बिकॉज अल्टीमेटली मैंने एक इमेज दिखाया था आपको कि ये टारगेट है, और मशीन भी क्या करता है, जस्ट प्रेडिक्शन शुरू कर देता है, प्रेडिक्शन शुरू करता है, कुछ में कुछ भी ये नहीं करता। बट जैसे भी वो प्रेडिक्शन शुरू करता है ना, इट इट कंपेयर्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब इसने ये प्रेडिक्ट किया था, फिर वो क्रॉस चेक करता है कि भाई एक्सपेक्टेड ये था ना, अच्छा तो मैंने यहाँ प्रेडिक्ट किया ना, तो इट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस। नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है कि भाई मैंने ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस बार इतना दूर मैं गया था ना, इससे थोड़ा कम दूर, मतलब थोड़ा नजदीक में जाओ, और ये नेक्स्ट इटरेशन में वो थोड़ा नजदीक आता है, उसके नेक्स्ट इटरेशन में थोड़ा नजदीक, एंड देन उसके बाद वाली इटरेशन में इट इज वेरी नियर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये एडजस्टमेंट, ये सब एल्गोरिदम में ये सब है, अल्टीमेटली यही है सब। आप जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको हर एक टाइप के एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग सब एक्सप्लेन करूंगा ना। जब आप पूरा हो जाएगा मशीन लर्निंग, तो आप अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा कि ये सब एंटायर क्या है, ठीक है, मतलब क्या चलता है। तो दैट इज द थिंग। तो आउटलायर्स का ये बॉक्स प्लॉट का भी वही है गाइस। तो डोंट वरी मोर ऑन दिस के, मतलब ये हो सकता है आप ये भी करो, ठीक है, जैसे कि क्वार्टाइल का ये मैंने बोला ये भी करो, और यू कैन डू इन योर कैलकुलेशन, यू कैन टेक दिस एज वेल। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जस्ट वो रेंज जो भी आउटलायर्स का, जैसे मैंने बोला बाउंड्री पॉइंट्स, उनमें थोड़ा इधर उधर इम्पैक्ट होगा। यस, all right, but whenever this will be get implemented on your business logic or business statement na, then you have to decide, actually you have to decide, even उन्होंने 1.5 बोला है तो, but as per your business प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से you can even say कि चलो मैं 1.5 नहीं लेता, मैं 1 से लेता हूँ, और मैं एक सर्टेन रेंज तक डेटा को लेता हूँ। एंड ये सब स्ट्रैटेजी कब, जब डेटा का आपका साइज कम ज्यादा है, या मिन मैक्स स्केलिंग, जो हमारा जो फिफ्थ मॉड्यूल, सेवेंथ मॉड्यूल है, मिन मैक्स स्केलर करके, ये सब आगे मैं आपको फिर से ये वाला चीज रिकॉल करूंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। बट आई होप टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव स्पेंड इनफ टाइम, एंड आई होप कि आपको ये हमेशा याद रहेगा, बिकॉज जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको ये रियलाइज होगा कि ओके, वैल्यूज आउटसाइड द विस्कर आर कंसिडर, ओके दिस इज टेकिंग, ठीक है। बट दैट वाज गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज जनरली हो सकता है अभी इस जैसे कि मुझे भी, मतलब जब भी आई वाज एक्सप्लोरिंग दिस, आई इवन थॉट के क्यों, मतलब ऐसे क्यों। बट लेटर ऑन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, तो पता चला था कि यस, दैट मैनिपुलेशन एंड दैट स्कोर, तो वी कैन इवन कंसिडर दोज काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस ऑलवेज, ठीक है। बट मेक श्योर कि वो इतना बड़ा ना हो, मतलब जैसे कि वो हमने 5 कंसिडर किया या 4 कंसिडर किया, इट्स ओके, बट डायरेक्ट क्वार्टाइल 1 के लिए मैं बहुत सारे एलिमेंट छोड़ के कंसिडर करूँ, सो दैट इज नॉट फिजिबल।
सो इवन अगर देखना है तो मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम देख सकते हैं, बट या आई विल टोटली कीप दैट पार्ट ऑन यू गाइस। आपको ये एग्जीक्यूट करना है और एक्सप्लोर करना है ये सब चीज, ठीक है। यू कैन मैनिपुलेट एंड यू कैन प्ले विद दिस। आई वॉज इवन एक्सपेक्टिंग कि कागज और पेन ले और इसका कैलकुलेट करे, बट आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ एंड आई होप के वी अंडरस्टूड इन बेटर वे, ठीक है। तो yesterday we were seeing this, we were checking के यहाँ पे देखो, now there are three very important techniques to deal with outliers guys, ठीक है। तो let me go there। हाँ, ये जो टेक्निक्स है ना, हाउ टू हैंडल द आउटलायर्स, ओके, एंड हाउ टू डील विद द आउटलायर्स। तो देखो अभी यहाँ पे भी इन्होंने तीन डिफरेंट डिफरेंट चीजें की। पहली बात, आउटलायर्स को रिमूव किया है, दैट इज वन टेक्निक ऑफ हैंडलिंग द आउटलायर्स। सेकंड इज कैप, मीन्स कैपिंग। मतलब क्या, अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि भाई आउटलायर्स को रिमूव नहीं करना है, आउटलायर्स को हमारे डेटा में लेना है, इन दैट केस यू डू द कैपिंग। तो कैपिंग इन इज कॉल्ड विंसोराइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या, जैसे मैंने बोला फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि इफ इन योर डेटा यू हैव सफिशिएंट डेटा बट देयर आर सम पॉइंट्स which are just kind of outliers which are not lying in our normal data, so in that case अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस वजह से कि इन आवर बिजनेस ना वी नीड टू फोकस मोर ऑन दिस डेटा, जस्ट इग्नोर द आउटलायर्स, तो आप डायरेक्टली यू कैन रिमूव द आउटलायर्स, आप रिमूव कर सकते हो। सो दैट इज वन वे। कैपिंग, कैपिंग ठीक है, इसका मैं प्रॉपर अगर आपको एग्जांपल दूंगा ना, तो ऐसे समझो कि ऐसे समझो कि चलो कुछ डेथ डेथ वाला एक डेटा है अपने पास, डेथ डेथ हुई है, ठीक है, काफी सारी एक मोर मोर पॉपुलेशन में डेथ हुई है। मतलब लेट से कुछ जैसे हम बोलते हैं ना, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया और डेथ हो गई, और डेथ में एक सर्टन एक गांव था, ठीक है, जो XYZ गांव है, उसमें डेथ हुई है, ठीक है, उसमें आया था ये अर्थक्वेक आया था, और उसके आजू बाजू के थोड़ा जो मतलब आउटसाइड रह रहे थे लोग, ठीक है, आउटसाइड रह रहे थे, ठीक है, और उन आउटसाइड में क्या हो गया कि मतलब नजदीकी ऐसे गांव के बाहर थोड़े से दो घरों को इम्पैक्ट हो गया। जनरली हाईली इम्पैक्टेड पॉपुलेशन यहाँ पे था डेथ रेट के बारे में, ठीक है, और वो सब डेटा अपने पास है, ठीक है। अभी इस केस में इफ वी आर कंसिडरिंग द डेथ, जो भी जिनके भी डेथ हुए उनका डेटा हम ले रहे हैं, तो इसमें हम इसको ऐसा नहीं समझेंगे कि भाई ये तो इट इज नॉट, ये लोग बाहर के हैं फिर इनको मत लो, हाँ इसमें इस वाले जो भी हम करने वाले आगे जो प्रोसेस उसमें इन लोगों को मत लो, ऐसे तो नहीं होता ना। तो उस ऐसे अगर जो भी आपको केसेस आएंगे, केसेस इन द सेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कस्टमर के रिलेटेड कुछ चीजें रहेंगी, तो उस केस में आउटलायर, ये इवन आउटलायर्स है बट इनको डेटा में लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो कंसिडर दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, एंड उस टाइप के एग्जांपल्स में आपको कैपिंग करनी होगी, मतलब आउटलायर्स को रिमूव नहीं करना होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कैपिंग, यू हैव टू टेक द आउटलायर्स, ठीक है। इन सर्टेन केसेस यू विल बी रिमूविंग आउटलायर्स, इन सर्टेन केसेस यू हैव टू टेक द आउटलायर्स, दैट इज कॉल्ड कैपिंग विंसोराइजेशन। ये कैसे होता है प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मिंग आउटलायर्स, थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मिंग आउटलायर्स। तो ट्रांसफॉर्मिंग आउटलायर्स और कैपिंग डज द सेम थिंग। मतलब क्या, इन दोनों केस में आउटलायर्स को हम इग्नोर और रिमूव नहीं करते, इस केस में हम आउटलायर्स को रिमूव करते हैं। एंड व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग द strategies to handle the outliers, हाँ। एंड strategies to handle the outliers में क्या क्या है, either आप remove the outliers or you can consider the outliers। तो consider the outliers, there are two methods, remove the outlier तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब इसमें भी मेथड इन द सेंस एक, जैसे देखो यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन था, कौन सा वाला, ये वाला, कि भाई थ्रेशोल्ड था, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ पे हम बॉक्स प्लॉट है क्या, नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया और रिमूव कर दिया है। तो हियर देयर वाज नो बॉक्स प्लॉट मेथड बट स्टिल वी आर रिमूविंग द आउटलायर्स, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग, ओके। सो ये बॉक्स प्लॉट का एक एक मेथोडोलॉजी है, ऐसा नहीं कि बॉक्स प्लॉट ही एक रास्ता है आउटलायर को डिटेक्ट करने का, या आउटलायर, हाँ, डिटेक्ट करने के लिए इट इज गुड, बट टू हैंडल और टू डील देयर आर सर्टेन डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव द आउटलायर्स, ठीक है। एंड वेरी लाइक एफिशिएंट हम बोल सकते हैं कि बॉक्स प्लॉट इज अ एफिशिएंट मेथड, अदर देन ये फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने सीखा था ना, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर बोला है कि भाई 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाना है, तो उसके अंदर जो भी है दैट इज योर गुड डेटा, इसके बाहर जो भी हो दैट इज योर
क्या बोलते हैं हम, आउटलायर्स बोलते हैं। तो दैट इज वन वे, दिस इज वन वे, ठीक है। बट द आइडिया एंड द पर्पज इज कि यू शुड नो द वेज कि कौन से हम ये कर मतलब अंडरस्टैंड कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आउटलायर्स को, बिकॉज आउटलायर्स आउटलायर्स बहुत हमने बात कर ली। तो ये क्या होता है ना, रियल डेटा में इम्पैक्ट करता है अगर बैलेंस डेटा नहीं है। ओके देन ये आउटलायर्स इम्पैक्ट करते हैं आपके मशीन लर्निंग के मॉडल को भी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग, वी आर लर्निंग द स्ट्रेटेजीज हाउ टू डील विद आउटलायर्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस, देन लेट मी, सो ये हमने कल देख ही लिया था कि यहाँ पे ये कैसे आउटलायर्स फाइंड आउट हुए, बिकॉज देयर वाज डिफाइंड थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड के ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, और इसको फिर बाद में हमने क्या किया, फिल्टर करके निकाल दिया। दैट वाज द आउटलायर्स का रिमूवल किया हमने, ठीक है। वन सेकेंड, आई थिंक आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड दिस, इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। ओके, तो फिल्टर कर लिया और निकाल दिया आउटलायर्स को। ओके, लेट मी शो दिस इमेज टू यू। ये एक्चुअली ये कोडिंग वगैरह ये मैं कर सकता था, बट द थिंग इज इसमें टाइम ज्यादा जाता है, सो आई हैव दिस रेडीमेड कोड एंड यू कैन जस्ट सी सी हियर हियर। ओरिजिनल डेटा देखो यहाँ पे ऐसा है ओरिजिनल डेटा, ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा में एक, दो, तीन आउटलायर्स थे, ठीक है। जैसे ही जेड स्कोर आउटलायर रिमूव थ्रेशोल्ड वाला किया, तो फिर हमने क्या किया, एक आउटलायर आपका कम हो गया, देखो अभी भी एक और दो है, बट द आउटलायर इज रिमूव्ड, दिस बॉक्स प्लॉट इज शोइंग इट, ठीक है। आ, अब ये एग्जीक्यूट करके आए ना, लेकिन ओके वेट, ओके। तो ओरिजिनल डेटा काउंट 15 था, एंड आफ्टर अप्लाइंग द फिल्टर वी हैव रिमूव्ड वन, वी हैव रिमूव्ड द वन विच वाज आउटलायर, ठीक है। एंड देन ये ओरिजिनल डेटा का स्टैट है, और ये आफ्टर रिमूवल वाला स्टैट है, ठीक है। तो काउंट में डिफरेंस हुआ है गाइस, एंड इवन यू कैन से जैसे ही काउंट में डिफरेंस हुआ, मतलब इंपैक्ट कैसे करता है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। तो एक आउटलायर की वजह से देखो कितना डेटा का बिहेवियर चेंज हो गया। पहले मीन क्या था अपना, 34 आ रहा था, अभी मीन क्या आ रहा है, 28। तो यू कैन सी द डिफरेंस आफ्टर रिमूविंग द आउटलायर्स। तो रिमूविंग द आउटलायर्स डेटा का जो एक जिससे बैलेंसिंग है वो काफी बढ़िया हो गया। अच्छा, ये 130 मैंने यहाँ पे डाला था क्या इधर, हाँ 130 ना, पहले 400 400 ये था, फिर उसके बाद ये सब चेंज हुआ, तो 130 डाला था। देखो 130 को उसने आउटलायर कंसिडर किया है, ठीक है। 99 इज कंसिडर्ड, ठीक है। 99 को उसने ले लिया इन बिटवीन, ठीक है। तो इज देयर एनी डाउट, यहाँ पे 99 को ले लिया, इन दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सी ये जो क्राइटेरिया था वो सेटिस्फाई नहीं किया, बट ये कर गया 99 वाला, और इसलिए वो बाउंड्री पॉइंट था, लेकिन उसने ये ले लिया। अगर ये तो फिर मेरे पे डिपेंड है, मैं थ्रेशोल्ड क्या लेता हूँ, कैसे करता हूँ, कम ज्यादा करता हूँ ना, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन मी। सो काइंड ऑफ स्मॉल फ्लेवर ऑफ फाइन ट्यूनिंग गाइस। गौरव, तो उसमें अपना पर्पस क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा को कंसिडर करना, ये पर्पस रहता है क्या डेटा साइंटिस्ट का, जब वो थ्रेशोल्ड के बारे में सोचते तब? ओके ओके, सो इट इज ऑल्सो डिपेंड, मतलब डिपेंड कैसे, चलो अगर आपके पास लेट से कुछ डेटा है, लेट से आपके पास अगर 100 ही डेटा है, ठीक है, 100 डेटा है, वेरी लेस डेटा। अभी हम बोलेंगे क्या हमेशा बिग डेटा ही रहेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं रहता। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक लेट से बिजनेस प्रॉब्लम्स गाइस, ठीक है। नाउ अगर आपको ये बहुत कम डेटा है, तो बहुत कम डेटा मतलब मशीन को एक जो पोटेंशियल है मशीन को लर्निंग का वो भी कम हो गया। ज्यादा अगर डेटा है तो डेफिनेटली मशीन विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस डेटा, कम डेटा तो कम। तो अभी क्या कैसे होता है, अगर आपका डेटा मतलब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे बायस एक टर्मिनोलॉजी है, बायस। तो मैं आपको मशीन लर्निंग में इसके बारे में बताऊंगा, वेरिएंस के बारे में बताऊंगा, बायस वेरियस ट्रेड ऑफ करके होता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इन दैट केस ना कैसे होता है, फिर आपको ये डेटा का जैसे मैं बोल अप स्केलिंग और डाउन स्केलिंग करके होता है। अगर मैं बोलूंगा, चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास एक इमेज थी, ठीक है। इस इमेज में ऐसा कुछ तो था, ठीक है, ऐसा था, जो भी ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और आपको बोल दिया गया कि भाई ये इमेज किसकी है, आप मतलब आपको इन द सेंस मशीन को बोला ये इमेज किसकी है, आप मशीन को बोला आइडेंटिफाई कर, ठीक है। तो मशीन में ये इनपुट हो गया इमेज। तो इनपुट होने के बाद है ना, मशीन इज ट्राइंग टू लेबल दिस इमेज, और मशीन ने बोल दिया कि ये जो इमेज है ये लेबल कर दिया कैट, ये कैट की इमेज है, ठीक है, कैट की इमेज है। तो कैट की इमेज किस बेसिस पे बोला पता है, ये मशीन का मॉडल जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है ना,
उस डेटा के ट्रेन में मतलब उस डेटा में 90 इमेजेस कैट की है और सिर्फ 10 इमेजेस है डॉग की 10 इमेजेस डॉग की है, हाँ, और 90 इमेजेस कैट की है। तो चांसेस क्या है, बायस्ड, बायस्ड इन द सेंस कि भाई ये डेटा, ये मशीन को जो भी फीड किया है, ज्यादा से ज्यादा कैट का डेटा फीड किया है। तो जनरली अगर आप डॉग जैसा थोड़ा बहुत अगर कुछ दे दोगे ना, जो थोड़ा सा इक्वल है, ह्यूमन तो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि दिस इज कैट और दिस इज डॉग, बट मशीन को जब देगे तो पार्शियलिटी क्या होगी, बिकॉज इट इज ट्रेन ऑन लॉट ऑफ डेटा विच इज कैट एंड वेरी लेस ऑफ डेटा। तो अभी इस केस में क्या होता है, ये बायस को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं भाई, उसके साथ थोड़ा एक क्या बोलते हैं जस्टिस करो। और अगर ये 90 डेटा आपका इसका है ना, मतलब ये ज्यादा डेटा इसका कैट का है, तो इसको कुछ तो करो कि ये भी इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब पार्शियलिटी ना लगे। ठीक है, इफ यू आर डूइंग टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, डॉग और कैट, तो उसके लिए अगर इसका 90 दे रहे हो ना, तो एक तो इसको भी 90 दो, या फिर लेट्स डू दिस लाइक 50 और 50, और लेट से 40-50, बट एटलीस्ट ये जो डिफरेंस है वो ठीक होना चाहिए। अदरवाइज ये मशीन लर्निंग क्या करेगा, पार्शियलिटी और बायस डिसीजन देगा, हमेशा आपको बोलेगा, मतलब मैक्सिमम ऑफ द टाइम बोलेगा कैट है। ठीक है, तो इन दिस केसेस ना हम क्या करते हैं, तो वी ट्राई टू डू अरेंजमेंट्स। तो अरेंजमेंट में अभी जैसे आपने बोला कि भाई डेटा साइंटिस्ट का जो एक पर्पस है, मतलब एक ट्राई है कि हमेशा मैक्स टू मैक्स डेटा कंसिडर करे। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर ये 10 है, तो ऑब्वियसली वो क्या बोलेगा, मतलब कि इंक्रीज दिस डेटा। तो इंक्रीज दिस डेटा, चलो अपने पास डेटा ही नहीं तो क्या करेगा, इसी डेटा को है ना, इसी डेटा को अलग अलग वे से वो कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऐड करके उसी डेटा को ज्यादा बढ़ाएगा, उसी डेटा को ज्यादा बढ़ाएगा, सो दैट ये डेटा एंड ये डेटा आर आर इन लाइक इन अ गुड फाइन, कि जैसे कि ये अगर 90 है तो ये भी 70-80 के करीब आ जाएगा। ये नया डेटा नहीं लाएगा, इसी डेटा को मैनिपुलेट करेगा इस वे से, मतलब कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इमेजेस एंड इट विल मेक अनदर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस विच इज सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो उसको आप स्केलिंग अप सैम्पलिंग वो सब बोलते हैं। अभी इस केस में जो हम आउटलायर की बात कर रहे हैं ना, तो आउटलायर का कैसा होता है, जैसे मैंने बोला कि डिपेंड कि आउटलायर का बिहेवियर आपके डेटा पे क्या इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, इफ लेट्स से ये आउटलायर का होने से आपका अगर ये पूरा डेटा पार्शियलिटी दे रहा है या बायस्ड या लेट्स से इज नॉट इन अ बैलेंस शेप, सो दैट इसका मशीन लर्निंग पे इंपैक्ट होने जाने वाला है आगे जाके इस डेटा का। तो देन वी डिसाइड कि भाई अपना बिजनेस स्टेटमेंट क्या है, अपने को कस्टमर से रिलेटेड क्या डेटा, और वो डेटा अगर इससे सेटिस्फाई हो रहा है तो यू डोंट नीड टू कंसिडर आउटलायर्स। बट लेट्स से इफ दिस डेटा इज important for your machine learning and it is also telling some important, let's say, insights, so in that case you will be considering this outlier का data into your data. तो एज आई सेड कि ये टोटली डिपेंड ऑन द यूज केसेस एंड बिजनेस प्रॉब्लम। एंड जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो मशीन लर्निंग पे जब आएगा, तो इवन ऐसा नहीं कि आउटलायर हमने अभी डिस्कस किया कर लिया और मशीन लर्निंग पे जब लर्निंग करेंगे तब आउटलायर का कुछ आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, उसमें भी आएगा। एंड देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये आउटलायर को डील करने के कैसे अलग अलग तरीके हैं, हाउ वी डील, आइदर वी रिमूव और कैपिंग। ठीक है, तो सो आई होप कि ये आगे भी आपका मतलब सो डेटा साइंटिस्ट जॉब इज अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी वेदर लाइक हाउ यू आर डीलिंग विद द आउटलायर्स। ठीक है, सो आइदर यू आर रिमूविंग, आइदर यू आर कंसिडरिंग, सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द बिजनेस। और जैसे मैंने बोला, आप क्या करो, आप कैगल पे मतलब एक रेगुलर विजिट किया करो कैगल पे, बिकॉज वहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स रहते हैं, जैसे क्रिमिनल का डेटा, उसके बाद प्रिजनर्स वगैरह, उसके बाद रहते जो कोरोना में जो डेथ हुए थे उसके अलग अलग डेटा रहते गाइस। और जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो वो सब देखेंगे ही, बट यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और या आई थिंक वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑन दिस आउटलाइन, अ लॉट, एंड इवन हम आगे भी जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। So I hope you understand the like what I'm trying to say, okay, how the data scientist think about outliers, because it is not the one way thinking, it is multiple different direction, मतलब अलग अलग strategical thinking है actually outliers को लेके। ठीक है, all right, filter data। सो ये आई थिंक दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। एंड या जैसे कि आउटलायर्स का जस्ट एक ही पॉइंट रिमूव होने के बाद आपको आप देख रहे हो कितना इंपैक्ट हो गया। सो दैट इज वन थिंग, रिमूविंग आउटलायर्स। तो यूज केसेस भी चलो, व्हेन आउटलायर्स आर क्लियरली एरर्स और इररिलेवेंट टू एनालिसिस। ठीक है,
तो अगर आपको ऐसा कुछ आता है कि वो क्लियरली एरर, हाँ ठीक है, चलो ये एक सर्टेन मैं बताता हूँ आपको कि कैसा है। आपका जो कस्टमर का डेटा है, तो कस्टमर के हमको पता है भाई, जो भी फॉर्म दिए रहते हैं उस फॉर्म में से कस्टमर सबमिट करते हैं बटन, और वो सब डेटा में आता है। तो बहुत बार होता क्या है, कभी कभी यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगा या कुछ मिसिंग रह गया, तो उसकी वजह से डेटा में ऐसा कुछ कुछ दिखते हैं, ठीक है, तो गार्बेज डेटा हम बोल देते हैं उसको। तो अगर आपको लगता है कि कुछ एरर्स काइंड ऑफ डेटा है, ठीक है, उसमें, तो यू डोंट हैव टू कंसिडर दैट डेटा पॉइंट इन योर डेटा, because if these are errors na, just simply remove the outliers. So this is nothing but it's use case, one use case. अगर आपको लगता है कि this error, this outlier is not important at all, just remove it, ठीक है। तो मेथड क्या क्या है, z स्कोर मेथड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, ठीक है। तो z स्कोर मेथड हमने अभी ऊपर देखा, ये थ्रेशोल्ड वाला, तो विच इज द सेम अप्लाइड ओवर हियर, एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर दिस z स्कोर मेथड का हमने ऑलरेडी देख लिया है। सेकंड मेथड क्या है, IQR, इंटर क्वार्टर रेंज, जो हमने बॉक्स प्लॉट में देखा, रॉबस्ट फॉर नॉन नॉर्मल डेटा, ठीक है, रोबस्ट फॉर नॉन नॉर्मल डेटा, मतलब जो स्क्यूड डेटा है ना, उसके लिए बहुत बहुत यूजफुल है ये मेथड, IQR वाली मेथड, ठीक है। और हमेशा मतलब 70% क्या होता है, आपका डेटा इज नॉट इन अ बैलेंस शेप, इट इज अ स्क्यूड डेटा। तो स्क्यूड डेटा को नॉर्मल करने के लिए वी यूज द दिस IQR क्वार्टाइल मेथड, एंड देन वी डील विद द आउटलायर्स। तो ये जो टेल वाला पार्ट है ये आउटलायर है, ये जो टेल वाला पार्ट है आउटलायर, तो क्या करो, इसको डायरेक्टली रिमूव कर दो, रिमूव कर दो, तो वॉट एवर द डेटा यू विल बी गेटिंग, दैट विल बी योर नॉर्मल डेटा, ठीक है, दैट विल बी योर नॉर्मल डेटा। एंड सी, Q1 माइनस 1.5 IQR, Q3 प्लस 1.5 IQR, ठीक है। तो ये Q1 और Q2 हमने यहाँ पे देख लिया था क्या था, जैसे ये अपना बॉक्स प्लॉट था, ठीक है, ये और यहाँ पे विस्कर, तो ये था अपना Q1, ये था अपना Q3, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं हम, प्लस, और यहाँ से इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस, और इसको करने के बाद जो देख रहे हैं दैट इज योर ये क्या, लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड वी आर कंसिडरिंग, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ठीक है, जस्ट फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन, एंड दिस इज हियर आल्सो इट इज सेइंग द सेम थिंग, IQR निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये परसेंटाइल क्वांटाइल, क्वांटाइल मतलब यही वाली चीज Q1 Q3। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि भाई जैसे कि आपको पता है ना, क्वार्टाइल मतलब कैसे है? अगर मैं एक का ये 100% कंसिडर करूँ, तो ये हो गया आपका 25%, इसके बाद ये हो गया पूरा 50%, ठीक है, और ये भी 50% हो गया, और इसको भी दो हिस्से कर दिए, तो ये हो गया अपना 25 25 25 25, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, तो ये होता है 75%, अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ, 75 होता है ना, 75, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 25, ठीक है। तो 25 और ये 75, इसका जो रेंज है वो हो गया आपका IQR, ये बचा 25%, ये बचा 25%, ठीक है। सो विच इज द सेम थिंग, फिल्टर डेटा IQR, सो ये लगा दिया, और लगाने के बाद फिर जो भी फिल्टर डेटा मिला, दैट इज अप्लाइड, लाइक वो डेटा फिल्टर होके आया, लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर, ठीक है, ठीक है। तो ये आफ्टर अप्लाइंग द IQR मेथड यू विल गेट द डेटा। सो दिस इज अनदर मेथड, थ्रेशोल्ड एक था, ये रिमूविंग का हम देख रहे हैं। कैपिंग, तो लेट्स से रिमूविंग के लिए हमने सफिशिएंट डिस्कशन भी किया। व्हाट इज द टाइम नाउ, एंड बट आई वो, अरे 9:11 हो गए गाइस, शैल वी कंटिन्यू और शैल वी स्टॉप, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज वी हैव एक्सटेंडेड आवर लिमिट, सो प्लीज गिव मी द confirmation guys, shall we continue? Yes, no, am I audible? नो। Yes, you are audible. I am not audible. Yes, you are audible. ओके, सो शैल वी कंटिन्यू को आपने नो बोला क्या? यस। ओह, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, बट गाइज ये जो चल रहा है, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग ना, यस। और इज देयर एनी कंफ्यूजन? No. ओके, ओके, ऑल राइट, बिकॉज कैसे है ना, हो सकता है आपको थोड़े थोड़े डाउट रहेंगे, बिकॉज आपने पूरा पिक्चर अभी तक बाकी है ना, तो ये तो हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि यार क्या है, बट आई एम ट्राइंग टू क्लियर मोर ऑन फ्रॉम माई साइड, इवन इतने डिटेल में नो, बट इट्स ओके, फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग टू like explain as much as I can, huh? Thank you guys, thanks for being here. If there is anything, please let me know, and if you have any suggestion, please let me know as well. Yeah, we will meet
कब, थर्सडे, या वी हैव क्लास ऑन थर्सडे ना, तो थर्सडे को हम ये पूरा एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये 3 मेथड्स, ठीक है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट। देयर आर फ्यू एडिशनल थिंग्स लाइक सिंथेटिक डेटा एंड ईडीए में क्या है, फीचर इंजीनियरिंग है, डेटा प्री प्रोसेसिंग है, वो सब देखेंगे हम, ठीक है। ऑल राइट गाइस, थैंक्स फॉर थैंक यू। बीइंग हियर। यस, थैंक यू आई सेड। हाँ हाँ, यस, थैंक यू।